ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇਨਸਾਈਟਸ ਵਿਦ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸੂਦ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਦੀ ਜੋ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ ਅਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਇਨਸਾਈਟਸ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸੂਦ ਜੀ। ਵੈਲਕਮ ਸਰ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਅਮਨ। ਸਰ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ, ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਕਲੌਤੀ ਲੋਕਲ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਰੀਜਨਲ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਲ ਸਟਰਕਚਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਡਿਜ਼ੋਲਵ ਕਰਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਹੀ ਨੇ ਹਜੇ ਵੀ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ, ਅਤੇ ਕੁਛ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਡਿਸੀਜ਼ਨਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੈ। ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸਰ, ਇਹਦਾ ਕੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਣੂਗਾ? ਦੇਖੋ, ਮੈਂ 2-4 ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਆਈ ਵੁੱਡ ਲਾਈਕ ਟੂ ਕਰੈਕਟ ਯੂ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਕੰਟੈਕਸਟ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਉੱਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਦੂਜਾ ਕਿ ਇਕਲੌਤੀ ਰੀਜਨਲ ਪਾਰਟੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰੀ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਕਈ ਛੋਟੀਆਂ ਰੀਜਨਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ। ਆਫ ਕੋਰਸ ਉਹ ਪ੍ਰੋਮੀਨੈਂਟ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੂਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਕੰਟੈਕਸਟ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਦਾ ਸਿਹਰਾ ਲੀਡਰ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਜੇ ਉਹ 'ਚ ਹਾਰ ਹੋਵੇ ਜਿੱਤ ਹੋਵੇ, ਜੋ ਵੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਸਿਹਰਾ ਲੀਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਟੌਪ ਲੀਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਅਤੇ ਐਫ ਆਈ ਐਕਚੁਅਲੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਇੰਨੇ ਬੁਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹਾਰੇਗੀ ਜਿਹਦੀ ਇੰਨੀ ਪੁਰਾਣੀ ਲੈਗੇਸੀ ਹੋਵੇ, ਵਿਚ ਹੈਜ਼ ਸਟੂਡ ਫॉर ਰਾਈਟਸ ਆਫ ਦੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ, ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਫॉर ਸੋ ਲੌਂਗ ਐਂਡ ਦੈਨ ਫॉर ਪੰਜਾਬ ਆਲਸੋ, ਤੇ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਰ ਕੇ ਸਿਰਫ 3 ਸੀਟਾਂ ਰਹਿ ਜਾਣ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ਿੰਗ। ਪਰ ਜਨਤਾ ਦਾ ਐਤਕੀ ਵਿਊ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਐਤਕੀ ਜਿਹੜਾ ਫਤਵਾ ਆਇਆ ਜੀ, ਇਟ ਵਾਸ ਨਾਟ ਅਗੇਂਸਟ ਜਸਟ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ, ਇਟ ਵਾਸ ਅਗੇਂਸਟ ਐਵਰੀ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲ ਪਾਰਟੀ। ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਲੈ ਲਓ ਜੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ ਚਲੋ ਕੁਝ MLA ਹੈਗੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਈਟ। ਬਟ ਐਟ ਦੀ ਸੇਮ ਟਾਈਮ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਇੰਟਰੋਸਪੈਕਟ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜੀ। ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਰੱਖਣਾ ਜਾਂ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਰਟੀ ਵਰਕਰਸ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਝੁੰਡਨ ਦੇ ਅੰਡਰ ਜਿਹੜੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਚੇਂਜ ਦੀ ਕੋਈ ਰਿਕਮੈਂਡੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰਸ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਬੜਾ ਨੈਚੁਰਲ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਈਵਨ ਜਿਹੜੇ ਵੈਲ ਵਿਸ਼ਰ ਵੀ ਹੋਣਗੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਲੀਡਰ ਹੋਣਗੇ, ਦੇ ਹੈਵ ਐਵਰੀ ਰਾਈਟ ਟੂ ਕੁਐਸਚਨ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ, ਕਿ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਤੋਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਜੀ। ਪਰ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਵੇਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਫ ਨਾਟ ਦਿਸ ਪਰਸਨ then who is the other person, who is the right person to lead us? ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਡਰ ਰਿਵਾਈਵਲ ਫਾਸਟੈਸਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸਾਰੇ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਕਰਕੇ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਇਸੇ ਨਤੀਜੇ ਤੇ ਨਿਕਲੇ ਕਿ ਅੰਡਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਓਨਲੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੈਜ਼ ਦੀ ਬੈਸਟ ਚਾਂਸ ਟੂ ਰਿਵਾਈਵ ਇਟਸੈਲਫ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਪਾਰਟੀ ਸਟਰਕਚਰ ਡਿਸੋਲਵ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੇਸਿਕਲੀ 100 ਕਨਸਟੀਚੁਐਂਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਵੇ ਕੀਤਾ, ਰਾਈਟ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰਸ ਨੇ, ਪਾਰਟੀ ਮੈਂਬਰਸ ਪਲੱਸ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜੀ। Now that is something which is surprising ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰੀਇਨਵੈਂਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜੋ ਫਿਊਚਰ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇੱਕ ਨੈਸ਼ਨਲ ਯੂਨਿਟੀ ਦਾ, ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਤੋਂ ਹੀ ਲੋਕੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਵੋਟ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਸੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਵਟ ਇਜ਼ ਦੀ ਨੀਡ? ਇੱਕ ਰੀਜਨਲ ਪਾਰਟੀ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟਸ ਯੂਰ ਜਿਹੜੇ ਇੰਟਰਸਟ ਨੇ ਰੀਜ਼ਨੇਬਲੀ ਵੈਲ। ਇੱਕ ਥਾਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਜੀ। ਬਟ ਐਟ ਦਿਸ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਟਾਈਮ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਓਵਰ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਵੇਖਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਐਤਕੀ ਜਿਹੜੇ ਪੋਲ ਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਏ ਨੇ, ਦੇਵਰ ਈਵਨ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਉਹ ਰਿਜ਼ਲਟ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਰਿਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲੀ ਰੂਲ ਕੀਤਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕੀ ਦੁਖੀ ਹੋਏ ਹੋਏ ਸੀ ਜੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 10 ਸਾਲ 2007 ਤੋਂ 17 ਰੂਲ ਕੀਤਾ, ਉਦੋਂ ਕੀ ਗਲਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਰਾਈਟ। ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੋਂ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਏ ਜਿਹਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਰ ਗਏ ਜੀ, ਰਾਈਟ। ਦੇ ਵਰ ਸਟਿਲ ਫੀਲਿੰਗ ਕੌਨਫੀਡੈਂਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜਨਰਲ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨ ਰਹੀ ਕਿ 5 ਸਾਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, 5 ਸਾਲ ਕਾਂਗਰਸ। ਉਹਨਾਂ ਲੱਗਾ ਕਿ ਐਤਕੀ ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਆਪਾਂ ਫੇਰ ਆ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਬਟ ਸਮਹਾਉ ਦੈਟ ਡਿਡਨਟ ਹੈਪਨ ਡਿਸਪਾਈਟ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਕਲੇਮ ਕਿ ਬਈ ਆਪਾਂ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਇਨਫਰਾਸਟਰਕਚਰ ਲਿਆਂਦਾ, ਬਹੁਤ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲਿਆਂਦੀ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਨ ਟਰਮਸ ਆਫ ਡੈਟ ਵਿੱਚ ਪਿੱਛੇ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਫਿਊਚਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਰਾਈਟ। ਕਿ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਅੱਗੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦੀ, ਕਿਸ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ 2 ਰੀਜ਼ਨ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ is one party that has the capability to bring communities together। ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਇਹ ਵਾ ਕਿ ਬਈ ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਆਹਤ ਨਾ ਪਹੁੰਚੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਨੈਸ਼ਨਲਿਸਟ ਵਿਊ ਵਾਲੀ ਰੀਜਨਲ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਹੋਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜੀ।
ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਟੀ ਸਟਰਕਚਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਡਿਸੋਲਵ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀ ਸਟਰਕਚਰ ਆਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਅੱਗੇ ਫਿਊਚਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ ਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਗਰਾਊਂਡ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਸਿੰਸੈਰਿਟੀ ਵਿਖਾਓਗੇ, ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਹੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੋਗੇ, ਰਾਈਟ, ਜਦੋਂ ਮੀਨਿੰਗਫੁਲ ਗੱਲ ਕਰੋਗੇ, ਯੂ ਹੈਵ ਅ ਚਾਂਸ। देयर इज नो गारंटी जी। देखो जे तुसी पॉलिटिक्स चाहे हो, यू माइट हैव टू परपैचुअली स्टे इन ओपोजिशन। हुण तुसी गल कर लो अटल बिहारी वाजपेयी जी दी जी, किन्ने साल ओपोजिशन च रहे, 1957 चो MP बन गए सन जी। बट जदों तुहाडा पैशन सी कि मैनूं लोकां दी सेवा करनी है, अपने लोकां लई सही सवाल चुकने आ, ते कदों तो लोकी वेखदे सी कि प्रॉबली वन डे ही विल बी आवर प्राइम मिनिस्टर। किन्ने लोकी कदों देखदे ਸੀ? जो तुसीं कंसिस्टेंटली लोकां दी सेवा करोगे, जे तुसीं यह सोचदे हो कि पावर च आना ही सक्सैस है पोलीटिकल पार्टी का, तो वो सोच ही गलत है। पोलीटिकल पार्टी का पर्पस है सर्टन इशूज़ ਲਈ स्टैंड करना, जो लोगों के इंटरस्ट ने, जो देश के इंटरस्ट ने, जो स्टेट के इंटरस्ट ने। जे वो काम वो सिंसैरिटी ना कर पान, जो मर्जी स्ट्रक्चर बनान, फिर किस तरह के लोग लियाते हैं कि लोग वो लियाते हैं जिहड़े लोगों मतलब कि किस तरह का तुहाडा काडर बनता है। वो पैशनेट लोग, विजनरी लोग आते हैं कि हाँ सिर्फ पैसे वाले बदमाश आते हैं कि भाई असीं ते टॉर टप्पा करना, तो इस करके कोई ना कोई सानू भी पोस्ट दे दो। ये सारिया चीज़ों का हुण श्रोमणी अकाली दल नूं ध्यान रखना पएगा। सर पंजाब का एक होर वड्डा मसला रहा है झोने की पराली नूं अग लाउण दा मसला, जिहदे नाल पॉल्यूशन भी हुंदा रहा, ते दिल्ली ने भी हमेशा सवाल चुके है कि पंजाब तो धुआं उड़ के दिल्ली तक आउंदा है ते वो पॉल्यूशन का कारण बनता है। हुण पंजाब सरकार ने केंद्र सरकार नूं एश्योरेंस दित्ती है कि 2024 तक जांदे जांदे इहनूं बिल्कुल खत्म कर दिता जाऊगा। देखो हुण इहदे विच सिर्फ यह नहीं है कि सिर्फ दिल्ली च पोल्यूशन हुंदा है, एक है जनरली लोगों के विच मिसकॉन्सैप्शन है कि सम हाउ लोग कई बार सोचते भी नहीं कि धुआं किवें उड़ के सीधा दिल्ली जाता तो सिर्फ दिल्ली च पोल्यूशन करता है। ये दो रीजन हो सकते हैं। पहला तो फंडामेंटली गलत है, क्योंकि जो जिथे पराली च अग लगी होंदी उत्थे धुआं होंदा है। तुसीं कदी खेतों के लागे जो अग लगी होवे निकल के वेखो, जिहड़े बच्चे एस्थमिक होंदे ने जां जिहड़े लोकी बीमार होंदे ने उन्हां दी तबीयत खराब हो जाती है। तो पोल्यूशन लोकली भी होंदा है, तो अक्रॉस दी एरिया होंदा है, हौली हौली जाके डिल्यूट होना शुरू हो जाता है। हुण सम हाउ कई बारी एटमोसफेरिक प्रैशरस ते कई बारी लोकल पोल्यूशन इस तरह का होंदा है कि उहदे विच ओह ऐड करके, जिवें दिल्ली च जिहो जिहा इन्वायरमेंटल पोल्यूशन वैसे ही है, उत्थे जिन्नी कंस्ट्रक्शन चलदी है, जिन्ने व्हीकल चलते हैं, ਉਹਦੇ ਕਾਰਨ ਉੱਥੇ ਪੋਲੂਸ਼ਨ ਹੋਰ ਕੰਸਨਟ੍ਰੇਟ ਹੋ ਕੇ ਡੇਂਜਰਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਸਾੜਨਾ ਕੋਈ ਸਮਾਰਟ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਦੀ ਵੀ। ਫॉर ਕਨਵੀਨੀਅੰਸ ਕਿ ਭਈ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਔਖਾ ਹੈ, ਇਹ 'ਚ ਖਰਚਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਜਸਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਕਾਰਨ ਸਾਡਾ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦਿਓ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦਿਓ ਜੀ। ਹੁਣ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਲੈਣਾ ਪਏਗਾ। इस प्रोसैस ਦੇ ਵਿੱਚ लेटेस्ट टैक्नोलॉजी ਤੇ लेटेस्ट रिसर्च ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਈ ਅਸੀਂ 2500 ਰੁਪਏ ਪਰ ਏਕੜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗੇ, 500 ਰੁਪਈਆ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਪਾਏਗੀ, 500 ਰੁਪਏ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪਾਏਗੀ ਤੇ 1500 ਰੁਪਏ ਕੇਂਦਰੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਪਾਏਗੀ। ਕੋਈ ਵੀ ਦਵੇ, ਰਾਈਟ, देयर इज अ कॉस्ट टू इट, ਲੈਟਸ ਇਨਸ਼ੋਰ ਹੈਲਥ। ਜੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਨਫੈਕਟ ਆਪਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਐਡ ਆਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸੌਫਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਉਹ ਮੈਨੂਅਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਨੈਚੁਰਲ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ, ਹੁਣੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦਾ ਕੇਸ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਨਸਟਰੂਮੈਂਟ ਲਿੱਤੇ ਸੀ ਉਹ ਉੱਥੇ ਸੀ ਨਹੀਂ, ਅਵੇਲੇਬਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇੱਕ ਕਰਪਸ਼ਨ ਕੇਸ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸਕੈਂਡਲ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਮੈਨੇਜ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਤੇ 1100 ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤਾ, 1100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਬਟ ਐਟ ਦੀ ਐਂਡ ਆਫ ਦੀ ਡੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉੱਥੇ ਹੈਗੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੀ। ਇਹ ਕੰਮ ਇੰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਈ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਟ ਕੁਡ ਬੀ ਮੈਨੇਜ ਵੈਰੀ ਵੈਲ ਐਂਡ ਪ੍ਰੋਫਿਟੇਬਲੀ, ਪਰ ਸਹੀ ਨੀਤ ਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਐਫਰਟ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਟੈਂਡ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਡਾਕਾ ਵੱਜਦਾ ਪਿਆ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਆ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਪਾਰਟ ਆਫ ਦੀ ਸੋਸਾਇਟੀ ਨੇ। ਸਾਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਓਵਰਆਲ ਇੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੀਏ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜੇ ਦੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਦੀ ਲਾਈਫ ਲਈ ਖਤਰਾ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਜੁਆਇੰਟਲੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਤੇ ਸਹੀ ਬਿਲੀਫ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਜੇ ਇਹ ਕੰਮ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਰ ਪਾਏ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਹੋਏਗੀ। ਇਹਨੂੰ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਉਪਜ ਹੈ ਲੌਂਗ ਟਰਮ 'ਚ ਵਧੇਗੀ, ਰਾਈਟ। ਸਾਡੀ ਹਵਾ 'ਚ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਆਈ ਹੋਪ ਕਿ ਇਹ ਸਕੀਮ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸੈਂਟਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਸਪੋਰਟ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਰ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਨੌਲੇਜ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਸੇ ਦੇ ਤਹਿਤ 170 ਟੀਚਰਸ ਗਏ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ
ਤੇ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਤੋਂ ਇੰਸਪਾਇਰ ਹੋ ਕੇ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬਿਹਤਰ ਕਰ ਪਾਵਾਂਗੇ? ਦੇਖੋ, ਨੌਲੇਜ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਜੀ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਹੈ। 170 ਟੀਚਰ ਜੇ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਹੋਪਫੁਲੀ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਕੇ ਆਣ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਾਂ ਬਿਕੋਜ਼ ਵੀ ਆਰ ਅ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲ, ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਐਂਗਲ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦਿਸ ਸ਼ੁੱਡ ਨਾਟ ਬੀ ਯੂਜ਼ਡ ਐਜ਼ ਅ ਵੇ ਟੂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਤੁਸੀਂ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਾ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ। ਦੈਟ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਦੀ ਪਰਪਸ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਕੁਝ ਵਧੀਆ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਉਸ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਪਰਪਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਦੇਖੋ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਐਕਸਚੇਂਜ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜ਼ਰੂਰੀ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਡੱਡੂ ਬਣ ਕੇ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ। ਸਾਡੇ ਟੀਚਰ ਜੇ ਟਰੈਵਲ ਕਰਨਗੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਬੈਸਟ ਸਿਸਟਮ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਸਿੱਖ ਕੇ ਆਉਣ, ਦੇयर इज नो डाउट अबाउट इट। ਤੇ ਇੱਥੇ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਨੌਲੇਜ ਵੈਸੇ ਵੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ। ਬੈਸਟ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਅਲੱਗ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਸ਼ਾਇਦ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਏਗੀ, ਬਟ ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੌਪ ਕਲਾਸ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ? ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਹੋਣ ਸ਼ਾਇਦ, ਉੱਥੇ ਕਿਵੇਂ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਗੱਲ ਆਂਦੀ ਹੈ ਹੁਣ ਲੋਕੀ ਕਹਿਣਗੇ ਜੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਅਲੱਗ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਅਕਾਊਂਟੇਬਲ ਨੇ, ਬਸ ਇਹੋ ਹੀ ਫਰਕ ਹੈ। ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ, ਜਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਟੀਚਰ ਦੀ ਸੈਲਰੀ ਤੇ ਸਪੈਂਡ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਸਕੂਲ ਨੇ ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਪਏ। ਬਸ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਵਾ ਕਿ ਅਕਾਊਂਟੇਬਿਲਿਟੀ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ ਪਏ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਤੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਅੱਜ ਉਹ ਟਰੈਕ ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਬੇਸਿਕ ਗੱਲ ਹੈ, ਟੀਚਰਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਟੀਚਿੰਗ ਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰਨ ਦਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ 10 ਕੰਮ ਹੋਰ ਨਾ ਕਰਵਾਓ। ਸੈਕੰਡਲੀ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਟੀਚਰ ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਐਡੌਕ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਪੇ them ਫੇਅਰਲੀ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 10,000 15,000 ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ 3-3 ਸਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਲਾਲਚ ਉਸ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 7-7 ਮਹੀਨੇ ਉਹਦੀ ਸੈਲਰੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਲਾਈਵਲੀਹੁੱਡ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਕਿਵੇਂ ਕਲਾਸਰੂਮ 'ਚ ਫੋਕਸ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਇਹ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਟੀਚਰਸ ਨੂੰ ਰਿਸਪੈਕਟ ਦਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਾਲ ਰੋਟੀ ਦੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਕੱਢ ਦਿਓ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਬੈਸਟ ਲੋਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਆਉਣਗੇ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਕਾਊਂਟੇਬਿਲਿਟੀ ਲਿਆਓ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਯੂ ਡੋਂਟ ਆਸਕ them questions। ਆਫਟਰ ਦੈਟ ਤੁਸੀਂ ਟਰੈਕ ਕਰੋ, ਬੈਸਟ ਲਰਨਿੰਗ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਸਿਸਟਮ ਲਿਆਓ। ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ ਇੰਨਾ ਆਸਾਨ ਹੈ, देयर शुड बी एवरी क्लासरूम कुड बी रिकॉर्डेड। ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਰਟ ਕਲਾਸਰੂਮ ਬਣਾਓ, ਸਾਰੇ ਸੈਸ਼ਨ ਰਿਕਾਰਡ ਹੁੰਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਦਿਸ ਕੈਨ ਬੈਨੀਫਿਟ ਆਰ ਇੰਟਾਇਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਟ੍ਰਿਮੈਂਡਸਲੀ। ਐਲੀਵੇਟ ਦੀ ਲੈਵਲ, ਟੀਚਰਸ ਨੂੰ ਵੀ ਇਵੈਲੂਏਟ ਕਰੋ ਤੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਵੀ ਇਵੈਲੂਏਟ ਕਰੋ ਕੰਟੀਨਿਊਸਲੀ। ਤੇ ਇਵੈਲੂਏਸ਼ਨ ਸਿਰਫ ਸਬਜੈਕਟ ਲੈਵਲ ਇਵੈਲੂਏਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਵੈਲੂਏਸ਼ਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਨ ਟਰਮਸ ਆਫ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਆਫ ਦੈਟ ਟੀਚਰ, ਇਨ ਟਰਮਸ ਆਫ ਐਮਪੈਥੀ। ਉਹ ਟੀਚਰ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਹੈਂਡਲ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਲਾਸਰੂਮ 'ਚ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਹੈਂਡਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਜੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏਗਾ, वी कैन क्रिएट वंडरफुल ड्रीम स्कूल्स फॉर एवरीवन। सर, भारत का जो आत्मनिर्भरता का गोल है, उसमें जो फॉरेन की कंपनीज हैं, फॉरेन की इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं, उनके साथ कोलैबोरेशन से फ़ायदा हो सकता है हमें? डेफिनेटली। देखो, कोई भी आप कंट्री ले लो जो आज से आपको लगता है 30, 40, 20 साल पहले पीछे थी और आगे कैसे पहुंची। हम सबसे बड़ा एग्जांपल लेते हैं चाइना। चाइना ने फॉरेन कंट्रीज को इनवाइट किया, उनके प्रोडक्ट्स को रिवर्स इंजीनियर किया, उनके साथ जॉइंटली मैन्युफैक्चरिंग की और लर्निंग की, और आज वो देखो टेक्नोलॉजी में सुपर पावर बनने जा रहे हैं। आप कोरिया को ले लीजिए, उन्होंने यूएस के, जापान के प्रोडक्ट्स को रिवर्स इंजीनियर किया, उनसे सीखा। देश को अगर आगे बढ़ना है तो जो इस वक्त बेस्ट है उनसे सीखना पड़ेगा, उनको आप अवॉइड नहीं कर सकते। आत्मनिर्भरता का इतना आपको ऐसा नैरो डेफिनेशन नहीं देनी है कि इसका मतलब ये नहीं है कि आपको सीखना नहीं है और कोलैबोरेशन नहीं करनी है और हेल्प नहीं लेनी है। और आत्मनिर्भरता का मतलब ये भी नहीं है कि आप, इसका मतलब कि पूरी दुनिया से मुंह फेर लोगे। इसका मतलब है कि जहां जहां क्रिटिकल एरियाज हैं आप बेस्ट से कोलैबोरेट करोगे, को प्रोड्यूस करोगे, को रिसर्च करोगे, ताकि आप उस लेवल तक पहुंचे और उसके बाद नेक्स्ट लेवल के प्रोडक्ट आप खुद बना पाए। ठीक है, ये सारी रिवर्स इंजीनियरिंग के ऊपर हमारे इंडिया का इस वक्त फोकस होना चाहिए। ऐसा तो है नहीं कि जब आपने अपने इंजीनियर्स को उस तरह का एक्सपोजर नहीं दिया, आपके वर्कर्स में उस तरह की प्रोडक्टिविटी नहीं है, उस तरह की लर्निंग नहीं है, आपकी फैक्ट्रीज में उस तरह की फैसिलिटीज नहीं है, उस तरह की मशीनें नहीं है, तो एक बार तो आपको बेस्ट के साथ कोलैबोरेट करना पड़ेगा। और इंडियन गवर्नमेंट ने ये बहुत अच्छा काम ये किया है कि उन्होंने एक लिस्ट बनाई है सर्टेन डिफेंस इक्विपमेंट की, जिसके इंपोर्ट पे बैन कर दिया। अब उन्होंने ये किस बेसिस पे किया है? ये वो प्रोडक्ट्स हैं जो इंडियन करंट अवेलेबिलिटी ऑफ टेक्नोलॉजी के बेसिस पे इंडिया में बन सकते हैं। यहाँ कंपनीज को इंश्योर करना पड़ेगा कि वो इंडिया में ही बनाएं और टेक्नोलॉजी को हमारे साथ शेयर करें। तो प्राइवेट कंपनीज हैं, उन्होंने भी देखना है कि भाई अगर हमें पैसे तभी मिल रहे हैं, इंडिया इज द बिगेस्ट इंपोर्टर ऑफ डिफेंस इक्विपमेंट इन द वर्ल्ड। तो इंडिया के साथ, इंडिया के पास आज ये पावर है कि इंडिया ग्लोबल कंपनीज के साथ अपनी शर्तों पे कोलैबोरेट कर सकता है।
तो आत्मनिर्भरता एक मतलब कि चाहे वो देश हो चाहे वो इंसान हो, अल्टीमेटली आपके लिए हेल्पफुल होती है। और आत्मनिर्भरता का मतलब अगेन एज ए इंसान, इसका मतलब ये नहीं कि मेरे को किसी की जरूरत नहीं है। इसका मतलब है कि मैं अपनी सॉवरेनिटी गेन कर सकता हूं। मेरे को सांस लेने के लिए भी प्लांट की जरूरत है, बट आत्मनिर्भरता ऐसी, किसी और पे निर्भरता ऐसी ना हो जाए कि जब आप मुश्किल में आए या वो किसी भी टाइम पे आपके ऊपर प्रेशर बना पाए। ये हमारे देश की आत्मनिर्भरता की डेफिनेशन होनी चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है कि आपने पूरी दुनिया से कटना है, आपने उनके साथ बिजनेस करना है, उनको सपोर्ट करना है, अपनी टेक्नोलॉजीज उनसे भी शेयर करनी है और इनकरेज करना है कि वो भी की एरियाज में आत्मनिर्भर हो, हम पे डिपेंडेंट वो भी ना हो। तो ये गोल सबके लिए बनाना है हमने। जी सर, आत्मनिर्भरता की बात हुई और अपने आप को सॉवरन करने की बात हुई, तो ईडी के लिए कुछ दिन पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ईडी जो काम कर रहा है वो बिल्कुल ठीक है। अब अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि ईडी और अच्छे तरीके से जो भी डिफ़ॉल्टर्स हैं, जो माने जाते हैं, जिन पे सवाल उठाए जाते हैं, उनके घरों पर रेड भी हो सकती है, उन पे उनकी प्रॉपर्टीज़ भी अटैच हो सकती हैं और जितनी भी कार्रवाई बनती है वो जल्दी होनी शुरू हो जाएगी। देखो, ईडी को ये जो फ्रीडम दी है सुप्रीम कोर्ट ने, बहुत सोच समझ के दी है। देखो, पैसे से देश के अंदर कोई भी इलीगल एक्टिविटी करवाई जा सकती है। पैसे की पावर हम सब जानते हैं जी। और जब ये पैसा स्पेशली फॉरेन करेंसी या मूवमेंट ऑफ मनी अक्रॉस द ग्लोब होता है, तो इसके वॉल्यूम इतने ज़्यादा होते हैं कि लेट्स सपोज, मैं आपको एक हाइपोथेटिकल सा एग्जांपल देता हूं कि अगर आपने इस तरह से कोई रेगुलेशन नहीं रखी, बाहर से जितना मर्जी पैसा है, जितना मर्जी पैसा चाहे, मैं आपको बता सकता हूं कि अगर हमारे देश के दुश्मन चाहें तो एक ही दिन में हमारे देश की सारी स्टॉक मार्केट्स को क्रैश कर सकते हैं या इस लेवल पे लेके जा सकते हैं कि हमारी लोकल कंपनीज का नुकसान हो जाए। जब एक आपकी स्टॉक मार्केट क्रैश हो गई, लोगों का आपकी मार्केट से भरोसा उठना शुरू हो गया, यहां से सारी इन्वेस्टमेंट जानी शुरू हो जाएगी। इस लेवल तक का खतरा है कि एक दिन के अंदर आप पूरी की पूरी फना। इसीलिए फॉरेन करेंसी की रेगुलेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसके अंदर कोई भी लापरवाही नहीं हो सकती। फिर दूसरा, जो देश के साथ गद्दारी कर रहे हैं, जो यहाँ पे करप्शन कर रहे हैं, जिनको आपने डेमोक्रेटिक प्रोसेस के थ्रू चुन के आपने या तो उनको असेंबली में भेजा है या पार्लियामेंट में भेजा है, या जिनको आपने IAS IPS बनाया है, जो उनके हाथ में सारी डिसीजन मेकिंग पावर है, जब वो करप्शन करते हैं, वो अगर अपना पैसा सारा बाहर ले जाना शुरू करेंगे तो उसको आप कैसे कंट्रोल करेंगे? अगर उनके पास कैश निकल रहा है या उनकी प्रॉपर्टीज, इंडिया के अंदर भी उन्होंने इस तरह की प्रॉपर्टीज बना रखी हैं जो फेयर तरीके से या बेईमानी से बनाई गई हैं, देश के हितों को बेच के बनाई गई हैं, तो आप उनको कैसे कंट्रोल करेंगे? तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले को अगर आप डीपली देखा जाए तो उन्होंने आम पब्लिक के हितों की प्रोटेक्शन की है। अब मैं ये सुन रहा था, ओपोजिशन के कई लीडर और कई बड़े फेमस लॉयर ये बोल रहे थे इसका तो मिसयूज हो जाएगा। आप वो एक एग्जांपल दे रहे थे कि अगर किसी ने फ्लैट ऐसे करप्ट आदमी से ले लिया, राइट, और आपको नहीं पता है वो करप्ट है, अब ईडी आपके भी फ्लैट पे को जब्त कर सकता है, राइट। अब पॉइंट ये है कि ये एक डराने वाली बात है कि भाई एक लोगों में मिस इन्फॉर्मेशन वाली बात है। अगर आपने व्हाइट में पैसे देके वो लिया है, राइट, और आपके नाम पे लीगली वो ट्रांसफर हो चुका है, तो आपके राइट्स प्रोटेक्टेड हैं, तो इंक्वायरी के बाद वो वैसे भी क्लियर हो जाएगा। बिल्कुल। अब दूसरे बंदे की करप्शन की है तो करप्शन, तो इसका मतलब कि अगर आपको पता है वो करप्ट है और आप भी उसको इलीगल तरीके से ले रहे हैं या डिस्काउंटेड प्राइस पे ले रहे हैं, तो आपके ऊपर एक्शन होना चाहिए। तो बेसिकली ये बेसिकली डरना चाहिए करप्ट लोगों को, आम आदमी को इसमें डरने वाली कोई बात नहीं है। जी सर, ऐसे ही एक बात और आई है कि 9 स्टेट्स जिसमें पंजाब और वेस्ट बंगाल भी शामिल है, उन्होंने कंसेंट नहीं दिया CBI को कि वो इन्वेस्टिगेट कर सके उनके केसेस। देखो, ये स्टेट गवर्नमेंट का राइट है जी, और क्लियरली जो 9 स्टेट्स हैं ओपोजिशन रूल स्टेट्स हैं मोस्टली, और ये स्टेट गवर्नमेंट का राइट है। पर अगेन इसके भी अगेंस्ट प्रोविजंस हैं अवेलेबल। अगर लेट सपोज वो केस कोर्ट में जाता है, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में, और अगर सुप्रीम कोर्ट CBI को डायरेक्ट करती है तो देन स्टेट कैन नॉट डू एनीथिंग, तो वहां पे फिर इन्वेस्टिगेशन होगी। अब आप क्या छुपाना चाहते हैं, या अगर आपको लगता है कि CBI का मिसयूज हो रहा है, यही एक रीजन होगा कि उन्होंने सोचा होगा कि हम ए प्रायोरी परमिशन ना दें। मेरे को लगता है कि ये सारे पॉलिटिकल गिमिक्स होते हैं, इनका कोई खास फर्क पड़ता नहीं है।
राइट। अगर आपको लगता है कि यहाँ का हर केस पहले हमारी पुलिस हैंडल करेगी और वो कॉम्पिटेंट है तो करे, पर जो लोग अपील कर रहे हैं, जो उसके अंदर लोग इन्वॉल्व हैं, अगर उनमें से कोई कहता है कि सीबीआई इंक्वायरी होनी चाहिए, और अगर स्टेट अलाउ नहीं करेगी तो वो हाई कोर्ट से ऑर्डर ले लेंगे। सो देयर इज नथिंग मच दिस। ये आज की डेट में क्या हो रहा है कि हमारे जो पॉलिटिकल नेता हैं वो अनफॉर्चुनेटली वो समझ नहीं रहे हैं कि उनके ये छोटे छोटे एक्शन देश के लिए कितने डेंजरस हैं। ये सारी चीजें धीरे धीरे लोगों का, हमारे जो इंस्टीट्यूट हैं उससे भरोसा उठा देंगे। ऑल इन ऑल, अगर आपका देश आज, मैंने एक दिन पहले भी आपको बोला था कि आप सोचो कि आज अगर आप किसी गवर्नमेंट ऑफिस में जाते हो तो आज से 10 साल पहले से आपको बेटर सर्विसेज मिलती हैं, फास्टर सर्विसेज मिलती हैं, ज़्यादा ट्रांसपेरेंट हो गई हैं कि आप ऑनलाइन बैठे बैठे अपने काम कर सकते हो। अगर इनका आंसर सही है तो आप ये मान के चलो कि बेसिकली वी आर मूविंग इन द राइट डायरेक्शन, और गवर्नमेंट एजेंसीज की या गवर्नमेंट जो इंस्टीट्यूट्स हैं उनकी अकाउंटेबिलिटी और बढ़ रही है, उनकी ट्रांसपेरेंसी और बढ़ रही है। मैं एक पासपोर्ट का एग्जांपल ले लें, हम उसके अलावा कई चीजें जो हम गवर्नमेंट के साथ डील करते थे आज हमें ऑनलाइन कर सकते हैं बड़े आराम से, हमें किसी ऑफिसर से मिलने की जरूरत नहीं है। तो इसका मतलब ट्रांसपेरेंसी बढ़ रही है। ये जो कुछ इंडियन फोर्सेस, मतलब कि इंडिया के अंदर बेस्ड कुछ ऐसी एजेंसीज और कुछ फॉरेन बेस्ड एजेंसीज जो एक डेमोक्रेटिक ढांचा है, जो हमारा इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर खड़ा है, उसको वीक करने की कोशिश कर रही हैं। आम जनता को इस चीज को सोच समझ के एब्जॉर्ब करना चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि कभी ईडी का मिसयूज नहीं हुआ होगा या कभी सीबीआई का मिसयूज नहीं हुआ होगा, बट द पॉइंट इज मोर और लेस, अगर आप ग्लोबली भी जाएं तो इंडियन जुडिशियल सिस्टम और इंडियन ऑर्गेनाइजेशन या इंस्टीट्यूट्स, दे वर्क क्वाइट ट्रांसपेरेंटली। अगर आप सही रास्ते पे हो तो आपको रिजल्ट मिल जाएंगे। सर, सैन फ्रांसिस्को में इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी गई है मंकी पॉक्स को लेकर। देखो, वहाँ के मेयर ने इमरजेंसी डिक्लेयर की है। बेसिकली एज यू नो स्मॉल पॉक्स इज सेक्सुअली ट्रांसमिटेड, और ये बहुत ज़्यादा हो रहा है, स्पेशली इन सर्टन गे कम्युनिटीज, वहाँ पे इसकी ज़्यादा ट्रांसमिशन हो रही है ग्लोबली। और शायद वहाँ पे द परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन इज हायर विच इज गे, तो इसके कारण वहाँ पे ट्रांसमिशन इसकी ज़्यादा हो रही है और वो इमरजेंसी डिक्लेयर कर रहे हैं। पर अगेन ये बड़ी अलग तरह की बीमारी है, इसमें हमें सावधान रहना है, राइट, एंड वी हैव टू बी केयरफुल। और ये थोड़ा सा इन टच से फैल रहा है, और बाकी गवर्नमेंट्स को, बाकी जो भी एजेंसीज हैं, हेल्थ एजेंसीज हैं डिफरेंट कंट्रीज की, और इससे बड़ा ज़रूरी है कि हम ये भी देखें कि जो लोअर इनकम कंट्रीज हैं, जैसा उन्होंने कोविड में सफ़र किया है वैसा ना हो। हालांकि इसकी उस तरह की ट्रांसमिशन नहीं होनी है, राइट। इट इज़ मोर ऑफ अ फिजिकली या सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, या आपने लेट से कि चादर के अंदर वायरस, या आपने भी वहीं पे लेट गए, तो ये उस तरह से फैलने वाली, इट इज़ नॉट लाइक कोविड। तो अगर आप इनके नंबर्स भी देखेंगे पिछले कुछ टाइम में, इट इज़ नॉट गोइंग एट दैट पेस। इसकी वैक्सीनेशन अवेलेबल है, पर मेरे को ये लगता है कि वैक्सीनेशन भी सोच समझ के करवानी चाहिए। क्या प्रोबेबिलिटी है कि ये इस तरह से स्प्रेड करेगी जैसे कोविड स्प्रेड हुआ है। कोविड बहुत ही फास्ट पेस पे स्प्रेड हो रहा था। कोविड वाज अ वेरी वेरी कॉन्टेजियस डिजीज, वो बहुत फास्ट पेस पे स्प्रेड हो रही थी। वैक्सीनेशन भी हमें बिना सोचे समझे, बिकॉज वी हैव टू बी केयरफुल ऑफ द फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री ऑल्सो। अननेसेसरी पैनिक तो नहीं क्रिएट किया जा रहा। मेरे को लगता है कि ईमानदारी से इस चीज का भी होना चाहिए कि भाई जो हमारी फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं, जो एजेंसी, अननेसेसरी पैनिक ना क्रिएट करें। एक डिजीज अलग तरीके की है, दूसरी डिजीज अलग तरीके की थी, राइट। तो रिस्पॉन्स भी प्रोपोर्शनेट होना चाहिए। हर बीमारी से अगर हम पूरी दुनिया को रोक के बैठ जाएंगे तो हम अपनी प्रोग्रेस ही बंद कर देंगे। जी सर, चाइना की बात हुई तो ताइवान की भी बात हुई हमारे पिछले एपिसोड्स में। ताइवान को लेकर चाइना ने यूएस को धमकी दी थी, उसके बाद यूएस और चाइना के प्रेसिडेंट आपस में मिलने जा रहे हैं, फेस टू फेस मीटिंग की बात हुई है। देखो, कल ही यूएस और चाइनीज प्रेसिडेंट की फोन पे 2 घंटे की बातचीत हुई है। जी। यूएस की स्पीकर पेलोसी, शी वांट्स टू विजिट ताइवान, और चाइना ने बड़ा ही इस बार अग्रेसिव धमकी लगाई है। उन्होंने बोला है कि इफ यू विल प्ले विद फायर यू विल बर्न, मतलब कि इट विल एस्केलेट थिंग्स। बातें यहां तक हो गई, ये भी अटकलें लगाई जा रही थी कि अगर पेलोसी का विमान ताइवान की तरफ जाएगा तो चाइनीज एयरफोर्स कहीं उसको शूट डाउन ना कर दे और वहां पे एक ग्लोबल वॉर ना हो जाए। और इस टाइम पे ये दुनिया, इन 2 बड़े देशों की लड़ाई, ये दुनिया की 2 सबसे इंपॉर्टेंट इकोनॉमीज हैं, सबसे बड़ी इकोनॉमीज हैं, सबसे खतरनाक हथियारों से लैस है, न्यूक्लियर वेपनाइज्ड हैं, राइट। तो ये पूरी दुनिया के लिए बहुत बड़ा खतरा पैदा हो सकता था, इकोनॉमी के लिए,
डेवलपमेंट के लिए, और बेसिकली जान का खतरा बहुत बड़े लेवल का बन सकता था जी। तो इसके लिए अमेरिका ने इमीडिएटली 2 आवर एक कॉन्फ्रेंस, वीडियो कॉन्फ्रेंस और टेलीफोनिक कॉन्फ्रेंस हुई है दोनों प्रेसिडेंट्स के बीच, और उन्होंने एक बार मिलने का बनाया कि वी हैव टू मीट फिजिकली, और ये 5th कन्वर्सेशन है। और अभी भी कोई क्लैरिटी नहीं है कि पोलस्की विल गो अहेड विद हर विजिट और नॉट, और चाइना का क्या रिएक्शन होगा, इट हैज टू बी सीन। बट अगेन कल हम एक बात कर रहे थे कि जो सुपर पावर्स हैं उनके बीच के अंदर एक ओपेकनेस पड़ गई है। चाइना क्या कर रहा है, वो यूएस को नहीं बता रहा है कि वो वर्स्ट क्या करने को तैयार है, और यूएस नहीं बता रहा है कि वो चाइना के खिलाफ क्या करने को तैयार है। ये चीजें ना बहुत ही ट्रिकी हो जाती हैं, और इससे यूके के जो डिफेंस सेक्रेटरी है उन्होंने यही बात बोली थी कि अगर सुपर पावर्स एक दूसरे के साथ बैकडोर डिस्कशंस नहीं करेंगी तो किसी भी दिन एक छोटा सा इंसिडेंट ग्लोबल वॉर में कन्वर्ट हो सकता है। तो मेरे को लगता है कि इस तरह की कन्वर्सेशंस स्टेटस को मेंटेन्ड हो, ताइवान का जो स्टेटस है वो भी मेंटेन्ड हो, पर प्रॉब्लम ये है कि चाइना इस वक्त बहुत ही अग्रेसिव माइंडसेट में है। उनके प्रेसिडेंट इस वक्त अपने आप को लाइफ लॉन्ग प्रेसिडेंट बनाने के लिए, उनकी नवंबर-दिसंबर में उनकी पार्टी की एक मेजर मीट होनी है इस देश रैंड में, जहां पे उनको लाइफ लॉन्ग के लिए प्रेसिडेंट घोषित कर दिया जाएगा, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। नहीं तो उनकी आखिरी टर्म होनी चाहिए थी आइडियली। तो इसका मतलब है कि ही वांट्स टू स्टे इन पावर फॉर लॉन्गर। सेकेंडली, दूसरी चैलेंज ये है कि उनके कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि ताइवान को एक दिन चाइना से इंटीग्रेट करना है। तो जब आप अपने आप को स्ट्रांग पावरफुल लीडर दिखाना चाहते हैं, जो लोकल ओपोजिशन होती है, जो आपकी इंटरनल पॉलिटिक्स होती है, वो आपको पुश करते हैं कि व्हाट आर यू डूइंग अबाउट इट। और ऐसी भी अटकल लगाई जाई है कि बाय 2025 चाइना माइट बी इन दी पोजीशन टू टेक ओवर ताइवान। और अगर ऐसा होता है और यूएस को रिस्पॉन्ड करना पड़ेगा एज पर इट्स ओन, जो उनके अपने सेनेट में जो चीजें, जो उनकी कांग्रेस में जो चीजें उन्होंने डिसाइड कर रखी हैं, तो ग्लोबली ये बहुत ही रिस्की सिचुएशन बनती जा रही है। जब इस तरह की रिस्की सिचुएशन होती है तो इकोनॉमिक इन्वेस्टमेंट्स रुक जाती हैं, लोग सोचते हैं कि पैसे लगाएं ना, उससे फिर एक इकोनॉमिक ग्रोथ, पिछले 2 क्वार्टर में आप देख रहे हैं जीडीपी ग्रोथ यूएसए की नेगेटिव रही है, तो ऑफिशियली वो रिसेशन में आ चुके हुए हैं। अब वो हार्ड लैंडिंग होती है, सॉफ्ट लैंडिंग होती है, ये टाइम बताएगा, और इंडियन इकोनॉमी पे भी इसका बहुत भारी असर पड़ने वाला है। जी सर, एक चाइनीज बोट श्रीलंका के लिए निकला है और भारत ने स्टेटमेंट दिया है कि वी विल प्रोटेक्ट आवर इंटरेस्ट्स। देखो, इट्स गुड। एक वो बेसिकली सैटेलाइट से रिलेटेड कुछ एक्सरसाइजेज, यहाँ से सैटेलाइट को कैसे मैन्यूवर करना इंडियन ओशन से, उसके लिए निकल रहे हैं। और उन्होंने 2018 में जो पोर्ट था वहाँ का, जो श्रीलंका का सबसे बड़ा पोर्ट है, वो चाइना के कब्जे में है। उन्होंने क्योंकि डेट नहीं पे किया, और आज $1.5 बिलियन का डेट था, और उसकी वजह से नाउ उनके पास वो 99 ईयर्स की लीज पे है। अब इंडिया ने पिछले 1 साल में रफली $4 बिलियन श्रीलंका को दिए। अगर हम यही पहले से इस तरह के इनिशिएटिव लेते, आज से 20-25 साल से, जब चाइना ने अपना इन्फ्लुएंस बनाना शुरू किया था पिछले कुछ 15-20 सालों से, तो हम आज इस सिचुएशन में ना होते। तो उस पोर्ट की डेवलपमेंट का $1.5 बिलियन हम खर्च कर देते तो आज वो पोर्ट हमारा होता। बट अनफॉर्चुनेटली वी मिस्ड ऑन दोस अपॉर्चुनिटीज। और ये बेसिकली एक काइंड ऑफ 2014 में भी श्रीलंका ने चाइना की सबमरीन को वहां पे डॉक करने दिया था, तो तब भी इंडिया ने प्रोटेस्ट किया था। बट अनफॉर्चुनेटली तब तक चाइना श्रीलंका के ऊपर बहुत ही अपना इकोनॉमिक प्रेशर बना चुका हुआ था। उनके बहुत सारे जो प्रोजेक्ट्स थे उसमें चाइना का पैसा लगा हुआ था। अनफॉर्चुनेटली जो इंडियन जो फॉरेन पॉलिसी थी वो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में इतनी घिरी हुई थी, क्योंकि एक मिली जुली सरकार बनती थी, कोलिशन गवर्नमेंट थी, वो उनकी इंटरनल पॉलिटिक्स, और इस तरह से आसपास के, जब इंडिया डिस्ट्रैक्टेड था तब हमारे आसपास चाइना ने अपना इन्फ्लुएंस काफी बढ़ा लिया। मीनिंगफुल इनसाइट्स के लिए शुक्रिया सर। इस तरह की जरूरी जानकारी के लिए देखते रहिए इनसाइट्स विद विशाल सूद।